Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Students, today I will explain the topic of direct and inverse variation of class 8. So first I will explain the basic part of this chapter. Student, you know that concept is the power. If your basic part is solid, then you will solve these types, that type, thousands of questions. But your basic part should be solid. So first I will explain the basic part of this chapter. So start from what is the mean of variation. What is the mean of the variation? Variation means if two quantities depend to each other in such a way that the change of one value or one quantity, then corresponding change of the other value are called the variation. I will more explain of this topic. So now student, types of variations. So generally variations are two types. One is direct variations and second is inverse variations. So first I will explain that what is the mean of direct variation and indirect variation or inverse variation. So student, direct variation means suppose you have two quantities. One quantity is increased, then second quantity is also increased, then we say that the direct variation. Suppose x and y, these are two quantities. One quantity is increased, then second quantity is also increased, are called the direct variation. Otherwise one quantity is decreased and second quantity is also decrease, then we also call the direct variations. For example, suppose x value 2, y value 4, x value 3, y value 6, x value 4, y value 8. So when x value are increased, then y value is also are increased. Then we say that example of this direct variation. So ratio of the direct variation also equal. So x upon y, so ratio of x upon y equals to 2 upon 4 means 1 upon 2. Second, 3 upon 6 cancel by table 3, also 1 upon 2. Cancel 4 upon 8, ratio 4 upon 8 equals to again 1 by 2. So ratio of these two identities always same. Second part, if one quantity is decreased, then second quantity is also decreased, then we also say the direct variation. For example, suppose x equals to 10, y equals to 5. Suppose x equals to 20, y equals to 10. Suppose x equals to 30, y equals to 15. So ratio of x and y, x upon y equals to 10 upon 5, then we say equals to 1 upon 2. Second part, 20 upon 10 cancel by table 2. Ten upon 5, 2 upon 1 student. Again 2 upon 1. 30 upon 15. Again 2 upon 1. So ratio of these two quantities always remains same. So called the direct variations. So स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या क्या होता है. डायरेक्ट वेरिएशन में टू क्वांटिटीज होती हैं.
यदि वन क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी उसके साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी उसके साथ साथ डिक्रीज होती है। इन दिस एग्जांपल x कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, सो y भी यहां पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। एंड रेशियो ऑफ ईच पार्ट इक्वल्स टू 2/1, so it's called the direct variation. Clear students? Now second part, inverse variation. Inverse variation when two quantities, one quantity is increase, then second quantity is be decrease. If one quantity is increase, then second quantity is corresponding decrease, or called the इनवर्स वेरिएशन। यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 10 मैन कैन डू कंप्लीट ए वर्क इन 2 days, क्लियर। देन 20 मैन can do complete the same work in 1 day. So x number of men and y number of days. So number of men are increase but number of days are decrease. So one quantity increase and second quantity decrease, or called the inverse variation. So inverse variation, that x and y, suppose this part equals to x1, this part equals to y1, this part equals to x2, this part equals to y2. So x1 y1 always equals to x2 y2, always equal, and a constant part is shown by the, represent by the k or n value. So students, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में क्या क्या डिफरेंस हुआ। सो वेरिएशंस आर 2 टाइप, डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट में वन क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इनवर्स में वन क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। So student, in this video I will explain the 5 different type questions related to direct and inverse variation, and all these questions are very important questions, and these questions are come from previous year papers. Clear? Student, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल 432 किलोमीटर ऑन 48 liters of petrol. Distance and liter. So two quantities. One quantity is distance in kilometer, second quantity liter. How far would it travel on 20 liter of petrol? आपको बताना है कि 20 लीटर पेट्रोल में, so how far would it travel, कि कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो स्टूडेंट इसके लिए देखिए 2 क्वांटिटीज है, तो आप क्या कीजिए कि सिंपली एक 2 कॉलम वाली एक टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। तो 2 कॉलम वाली टेबल आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वो आप इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। तो टेबल रेडी हो गई, 2 कॉलम 1 and 2, फर्स्ट कॉलम पेट्रोल इन लीटर, सेकेंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। स्टूडेंट को इश्यू नहीं है कि आप चाहे तो इस वाले पार्ट को आप अप वाले कॉलम में ले सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप डाउन वाले कॉलम में ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट। चलिए, सो पेट्रोल
So 48 liter petrol, right? So distance 432 kilometer. Now second, 20 liter of petrol. So how far? So let be x kilometer. Kilometer already not now. Let. तो हमने मान लिया कि वो 20 लीटर में x किलोमीटर जा रही है. अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने ब्रेन को यूज कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनवर्स वेरिएशन का है. क्लियर? तो देखिए, पेट्रोल था 48 लीटर, तो डिस्टेंस हुई 432. अब पेट्रोल क्या हो गया, 48 से 20, यानी कि पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो हो गई लेस. तो बताइए 20 लीटर में जो कार है वो 432 से कम जाएगी या ज्यादा जाएगी? क्लियर? कम आएगी भाई. जब 48 लीटर में 432 आ रही है तो 20 लीटर यदि हम पेट्रोल कम कर देंगे तो उसकी जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. करेक्ट? मींस जब फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी उसके साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया. और डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में आपको पता है कि रेशियो सेम आता है. चलिए रेशियो बना दीजिए. सो 48 अपॉन 432 का रेशियो वही आएगा जो 20 अपॉन एक्स का रेशियो आएगा. करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 48 इंटू एक्स, 48 इंटू एक्स इक्वल्स टू 432 इंटू 20, 432 इंटू 20. सो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सो 48 आएगा इसके डिनोमिनेटर में. सो 432 इंटू 20 डिवाइड बाई 48. अब स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि क्या सर हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हो. 48 और 432 को आप कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. आपका आंसर सेम आएगा. नो चेंज ऑफ योर आंसर. ओके, चलिए कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने इसको कैंसिल किया 4 से. सो 12 टाइम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से कीजिए. सो 1 टाइम 08, अगेन 12, 9 जा 108. सो 20 इंटू 9 इक्वल्स टू 180 किलोमीटर. Answer. So car travel the distance equals to 180 kilometer in 20 liter of petrol. Clear students? Student, आपका बेसिक पार्ट क्लियर है, मीन्स concept is clear and concept is the power. So now you can do solve of thousands of questions. यकीन मानिए कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड यू विल डिसाइड दैट दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन. ओके. ए टाइप्स 540 वर्ड्स इन हाफ एन आवर. यानी कि ए कैंडिडेट है कोई, ए वो 540 वर्ड्स टाइप करता है हाफ एन आवर. करेक्ट? सो हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट्स? बताइए कि वो 6 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप करेगा. क्वेश्चन इज क्लियर. सो फर्स्ट यू जस्ट दैट क्वेश्चन इज डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन. देखिए
यहां पे 540 वर्ड्स वन क्वांटिटी एंड सेकेंड इज टाइम हाफ एन आवर, राइट. सेकेंड टाइम द टाइम इज 6 मिनट. 6 मिनट हाफ एन आवर से क्या होता है, कम. तो जब टाइम कम लगेगा तो वो वर्ड्स भी कम टाइप करेगा. यानी कि जब टाइम डिक्रीज हो रहा है तो वर्ड्स भी उसके साथ साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो वन क्वांटिटी डिक्रीज देन सेकेंड क्वांटिटी इज ऑल्सो डिक्रीज. सो दैट क्वेश्चन इज ए डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन. तो स्टार्ट कीजिए. मेथड वही होगा. फर्स्ट यू विल मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम टेबल, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो नाउ टेबल इज रेडी. देन number of words, one column is number of words, second column is time in minute. So number of words, so now number of words 540 and time equals to half an hour. Half an hour means half hour, so convert into minute. Half hour convert into minute because in second line time is given in minutes. So multiply by 60, cancel 30 minutes. So half an hour equals to 30 minutes. Clear? Find the number of words. So let be x in 6 minutes. So 6. And you know that student that direct question is a direct variation. So 540 upon 30 equals to x upon 6 because ratio will remain same. So cancel 0 to 0 cancel 1 and 8 18 times. So 18 into 6, so cross multiplication. So x multiply 1, so x equals to 18 into 6, 108 words. So she can write equals to 108 words in 6 minutes. So now I think that question is solution is clear. So now next question. So now in this question, students, 56 men can do a work in 42 days. Students, सबसे पहले आपको ये जज करना है कि ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज द डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन. यदि आपने ये जज कर लिया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा. 101% क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा. और वेरी सिंपल मेथड. इन दिस क्वेश्चन 56 मैन कैन डू ए वर्क इन 42 डेज. यानी 56 मैन वर्क कर रहे हैं तो 42 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है. अब यही वर्क हमें 14 डेज में चाहिए, यानी 42 डेज में नहीं चाहिए, यानी 14 डेज में चाहिए. यानी कि हमें वर्क जल्दी चाहिए. यस, यदि आपको वर्क जल्दी चाहिए तो मैन का जो नंबर है, नंबर ऑफ मैन, उनको इंक्रीज कर दो. यानी यहां पे ये नंबर 42 से 14 डिग्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे नंबर आप इंक्रीज करने की बात कर रहे हो. यानी कि मैन इंक्रीज हो रहे हैं बट डेज डिक्रीज हो रहे हैं. यस, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया. बिल्कुल इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया. टेबल तो आपको वैसे ही कंस्ट्रक्ट करनी है, 2 कॉलम टेबल. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहां लीजिए नंबर ऑफ मैन, और यहां लीजिए डेज. नंबर ऑफ मैन आपके पास है 56, तो डेज हो गए आपके पास 42. नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट करना है, सो एक्स इन 14 डेज. क्लियर.
अब देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको ये बताया था, सॉरी, इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नंबर है, करेक्ट, मीन्स x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, करेक्ट। अब ये है आपका x1, ये है y1, सो 56 इंटू 42 इक्वल्स टू x इंटू 14। देखिए स्टूडेंट, यहां एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं और ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। डायरेक्ट वाले में अपन रेशियो बनाते थे 56 अपॉन 42 इक्वल्स टू x अपॉन 14, लेकिन इनवर्स वाले में आपको क्या करना है, आपको करना है 56 इंटू 42 इक्वल्स टू x इंटू 14, यानी ये वाली आपको कंसेप्ट लर्न करना है, करेक्ट। चलिए, सो 56 इंटू 42 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू x, 14 3 जा 56 इंटू 3 168 man. So 168 men can do complete the work in 14 days. Clear students? I think that this question is clear. तो स्टूडेंट, यदि आपने ये जज कर लिया कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का है या इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है, मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं, और रॉन्ग क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन को पहले अपन समझ लेते हैं। सो एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, 120 मैन हैड फूड फॉर 200 डेज। 120 मैन के लिए 200 डेज का फूड है, यानी खाना खा सकते हैं, सफिशिएंट है। आफ्टर 5 डेज यानी 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट, यानी कि 30 मैन है वो लेफ्ट कर गए, चले गए वहां से। सो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट? तो जो बचा हुआ फूड है वो कितने? अब देखिए स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ मैन and days. So 120 man for 200 days. So 120 मैन है। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 200 डेज, और ये लिखना ही उनके लिए क्वेश्चन का रॉन्ग पार्ट हो जाता है। तो यहां 200 आप क्यों लिखोगे? 5 डेज, यानी कि 5 डेज तक तो उन्होंने फूड ले ही लिया है ना, यानी अब 200 में से 5 माइनस कीजिए आफ्टर 5 डेज, यानी कि जो 30 मैन लेफ्ट करके गए हैं वो आफ्टर 5 डेज हैं। तो इसका मतलब 120 मैन के लिए ये फूड है 195 डेज के लिए, ना कि 200 डेज के लिए। 5 डेज तक तो उन्होंने खाना खा ही लिया है, यानी अब बचा हुआ जो खाना है, बचा हुआ जो फूड है वो 195 डेज और चलेगा। पर 30 मैन लेफ्ट कर गए, यानी कि नंबर ऑफ मैन रह गया 120 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, तो 120 में से 30 माइनस हुए तो 90 मैन रह गए। अब ये 90 मैन इसी फूड को, ठीक है, सो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग, यानी कितने दिन ये फूड चलेगा। तो देखिए, जब 120 मैन के लिए 195 डेज फूड चलता है तो 90 मैन, ये तो इससे कम हो गए,
तो जब नंबर ऑफ मैन कम हो जाएंगे तो फूड ज्यादा दिन चलेगा। अरे सपोज कीजिए कि आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 1 मंथ का फूड आपके पास स्पेयर में है, राइट। अब सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यानी फैमिली मेंबर हैं वो 1 रहा, यानी कि 4 मेंबर्स हैं वो लेफ्ट कर गए या चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए। तो 1 मैन के लिए तो वो जो 1 मंथ वाला फूड है वो लॉन्ग डेज होगा ना, ज्यादा दिन चलेगा। क्लियर? यस। सो 120 मैन के लिए 195 डेज के लिए है, तो 90 मैन के लिए ये कितने दिन होगा? तो स्टूडेंट ये हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन, करेक्ट। तो इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको बताया था कि x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। सो 120 इंटू 195 इक्वल्स टू 90 इंटू x। सो 120 इंटू 195 डिवाइड बाय 90 equals to x. 90 will become in denominator. 0 to 0 cancel. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 5s are 15. So 4 into 65. So 4 into 65 equals to x. So 65 into 4 equals to 260 days. Means 90 men can do this food use for 260 days. Clear है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So now student, next question is very important question. Very important question. आपसे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. So question is, a person has money to buy 25 TV set, rupees 500 each. यानी कि वो 25 टीवी सेट परचेज कर सकता है. Each TV set cost is rupees 500. 1 TV set 500 का आता है, उसके पास मनी है 25 TV set परचेज करने की. Now, how many TV set he will be able to buy if each TV set costing rupees 125 more? अब क्या हुआ कि जो प्राइजेज हैं वो राइज कर गई, यानी कीमतें बढ़ गई. तो अब जो टीवी सेट है तो ईच टीवी सेट तो 125 रुपीज ज्यादा हो गया. सो फाइंड द नंबर ऑफ टीवी सेट ही विल बी परचेज, कि वो कितनी टीवी सेट खरीद सकता है, जबकि कॉस्ट क्या हो गई, अब बढ़ गई है. तो नेचुरल है कि जब कॉस्ट बढ़ी है तो टीवी सेट कम परचेज किए जाएंगे, करेक्ट. सो नंबर ऑफ TV set and cost. So number of TV set 25, right? And each set cost is rupees 500. Now cost is increased 125, यानी कि अब जो टीवी सेट आएगा वो 500 का नहीं आएगा, वो आएगा 500 प्लस 125, यानी कि 625 रुपीज का टीवी सेट आएगा आपके पास. सो फाइंड द नंबर ऑफ टीवी सेट. सपोज नंबर ऑफ टीवी सेट इक्वल्स टू एक्स. ओके. सो देखिए यहां पे जब कॉस्ट हुई है इंक्रीज तो टीवी सेट हुए हैं डिग्रीज, यानी कि 2 क्वांटिटीज में 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. तो जब प्राइस बढ़ेगी तो टीवी सेट कम आएंगे ना. यस, क्वेश्चन हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन का.
सो इनवर्स वेरिएशन में यूज कीजिए x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 मीन्स 25 इंटू 500 इक्वल्स टू x इंटू 625. So 25 into 500 divided by 625 equals to x. 25 cancel 625 for 25 times and 25 cancel 20 times. So x means number of TV set equals to 20. So number of TV sets equals to 1. So he can purchase 20 TV sets in same price. So students, in these 5 questions, all questions are different type questions. So ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आता है वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आपको आए. So bye friends.